हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपके प्रिपरेशंस बहुत अच्छे चल रहे होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज। दिस इज द फर्स्ट क्लास, सो आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। तो आज के क्लास में वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक्स ऑफ एल्जेब्रा विच आर रेशियो, प्रोपोर्शन, logarithms, indices, equations, linear inequations, and sequence and series. So these are very important topics which are going to get you good marks in the exam. So I am sure you are ready with all your enthusiasm to start the paper and the revision series. So let me tell you something. This particular paper which you are going to attempt is an MCQ based paper. So definitely you have to be very alert with the options which you get, and you can make good use of these options also when you are attempting the question. So we'll try to see how each and everything works and how we are going to deal with the playing of options, which I call. So I'll just begin. All right. Now, before I move to this particular question, which you can see on screen, I'll just tell you a very basic thing about ratios. So, ratios में कोई theory नहीं है. You also know that, right? Ratio is just a comparison of two similar quantities, right? So now, in ratio and proportion, the only thing which you have to remember is always see and always take care that ratios don't have any unit. So when we are comparing two things, तो वो दो चीज सेम ही होनी चाहिए, तभी उसका रेशियो हम बना पाएंगे, राइट? सपोज if you are comparing people, so ratio of boy is to ratio of girl, ratio of milk is to ratio of water. So they are similar quantities, right? This is one thing which you have to always remember. And rest, see, there is no theory in ratios, so I'll directly deep down into the sums which we have. इसमें तो कोई formula भी नहीं होता, right? So this is a very interesting and easy chapter, but it is a very scoring one too. You will get good questions from here. So see, the first question is, if A is to B is 3 is to 5, B is to C is 5 is to 4 and C is to D is 2 is to 3. अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमें निकालना है A is to E. So we have to find out A is to E. This is what we have to find out. अभी देखो, I'll write A is to B here. थोड़ा सा मैं गैप छोड़ूंगा यहाँ पे, purposely I am leaving a gap here. You will understand why. This is given as 3 is to 5, right? अभी देखो, B is to C is given as 5 is to 4. तो ये जो B में 5 है और ये जो B में 5 है, ये कॉमन है. So I can directly put a is to C here and I can write this as 4. Clear? So this is something very similar because ratio term अगर सेम है तो वो रेशियो को हम कंबाइन कर सकते हैं. अब वैसे ही देखो, C is to D में 2 is to 3 दिया है, तो यहाँ पे C की वैल्यू 4 है, but the value of C here is 2. So C is to D को हम 2 is to 3 नहीं लिख करके 4 is to 6 लिख सकते हैं. I just multiplied the ratio by 2. So if I multiply the ratio by 2, I get 4 is to 6. और अब इसको यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो अब देखो, अब ये C का 4 और C का 4 बराबर हो गया. तो if I make this as D, so I can write this as 6. Okay? So A is to B is to C is to D is 3 is to 5 is to 4 is to 6. अब सर E का क्या करें? तो देखो, E में रेशियो नहीं दिया हुआ है. वी डोंट हैव D is to E, वी डोंट हैव, बट what we have is D is 50% more than E. अब कोई भी क्वांटिटी 50% मोर होता है तो क्या क्या होता है? 1.5 गुना ज़्यादा. So that means 1.5 times. So I can say that D is 1.5 times E. So I can say that D is 3 by 2 times of E. So therefore D is to E कितना हो गया? 3 is to 2 हो गया, राइट? अभी देखो, D का वैल्यू 6 है और यहाँ पे D 3 है, तो अगेन आई नीड टू इन्फ्लेट दिस वैल्यू. तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये 6 is to 4 हो जाएगा. सो नाउ आई कैन राइट हियर is to 4. तो अब इधर में मैं लिख देता हूँ is to E.
तो अब a इज टू ई कितना बन रहा है, 3:4 बन रहा है. माई ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर. सो सी, I am solving this question here, that is why it is taking such a long time, but when you will do it in your exam, it is going to be very quick. Okay, so don't worry about this, and please attempt these questions. They are very easy and important questions. Chalo, let's move on to the next one then. Okay, now this question is a very easy question based on indices. So let's try to understand how to do this question. So before moving to this, let me just give you a very basic quick review of the formulas which we use in indices. So what are the formulas which we use? A to the power m into a to the power n gives me a to the power m plus n. So this is the rule where if the bases are same, we can just add the powers. Similarly, if a to the power m whole to the power n है, तो अपने क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर mn लिख सकते हैं इसको. ये एक रूल था, सिंपल रूल. और एक रूल है जो इंपॉर्टेंट है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n अगर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a टू द पावर m माइनस n. राइट, क्योंकि अगर बेस सेम है तो डिनोमिनेटर वाला जो पावर है वो नेगेटिव होके ऊपर आ जाएगा. सो इफ़ यू रिमेंबर दीज थ्री, यू विल नॉट लैंड इन एनी इश्यूज. ये वाला इंडिसेस में और कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं आपको. करेक्ट. तो चलो, लेट अस सॉल्व. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. नाउ यू माइट से सर ऑप्शन भी बैठा के कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं, लेकिन देखो ऑप्शन बैठाने में भी थोड़ा चैलेंजेस आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है. इट माइट बी लिटिल चैलेंजिंग. तो इसको थोड़ा और भी सिंपल वे में देखते हैं. देखो यहाँ 8, 2, 16, 2, 4 ये सारा का सारा वैल्यूज क्या है, 2 का बेस पे है. तो मैं इसको 2 का बेस में कन्वर्ट कर देता हूँ. इसको 2 क्यूब लिख सकता हूँ, 2 क्यूब टू द पावर n इंटू 2 क्यूब इंटू 16 कितना होता है, 2 टू द पावर 4 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n को 2 टू द पावर n ही रहने दो. और 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट 1 बाय 4 को भी 2 स्क्वायर लिख देते हैं. क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हमने जो रूल्स पढ़ा उस रूल्स के हिसाब से क्या हो रहा है, ये 2 टू द पावर 3n बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू ये 2 क्यूब को 2 क्यूब ही रहने दो. फिर ये 2 टू द पावर -4 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 4 बन जाएगा, और ये 2 टू द पावर -2 बन जाएगा. अब -2 कैसे बना, अरे बाबा 1 है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं 2 टू द पावर 0 बाय 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ ना भाई. तो अब 0 - 2 इज -2, वही रूल से, डिवीजन वाला रूल से. अब इसको वापस से क्लीन करते हैं थोड़ा. तो अब इसको क्लीन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ये बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकता हूँ मैं, राइट. तो 2 टू द पावर, अब ये कितना है, 3n प्लस 3 -4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n प्लस 4. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2. अब फिर इसको मैं लिख देता हूँ 2 टू द पावर 3n -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2. देखो मैं इतना एकदम एक एक स्टेप दिखा दिखा के सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है. बट व्हेन यू विल डू दिस इन द एग्जाम, आप इसको एकदम चुटकियों में करोगे, बिकॉज आप स्टेप्स जंप करोगे, राइट. ये स्टेप्स दिखाने का कोई मार्क्स नहीं है एग्जाम में. बोर्ड एग्जाम्स में ये स्टेप्स लिखने के लिए मार्क्स मिलता था, लेकिन इस एग्जाम में अगर आप ये स्टेप्स लिखोगे तो आपका ये नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा. क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे ये सब रामायण लिखने में, पर वो तो लिखना नहीं है हमें, राइट. बिकॉज we have to ensure that we attempt maximum number of questions correct in the given amount of time, right. और स्टैट्स वगैरह में आपके बहुत फॉर्मूलाज वगैरह रहेंगे, कैलकुलेशन इंटेंसिव रहेगा, तो यहाँ पर ये सब स्टेप्स लिख के टाइम वेस्ट मत करना. मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, राइट. तो अभी यहाँ पे इसको कर दो 2 टू द पावर 3n -1. अब वही ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ n प्लस 4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर -2. तो अब मैं इसको लिख देता हूँ सीधा. अब देखो इसको डायरेक्टली करते हैं, 3n - n इज 2n, राइट. और ये आ जाएगा -5 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2.
तो देयरफॉर अब एक और रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बेसिस सेम है इक्वेशन में तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. सो आई गेट 2n-5 इज इक्वल्स टू -2, सो n इज इक्वल टू 3/2. ऑप्शन सी. ओके, इजी था, सिंपल है. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, now this question is also a very interesting question. अब ये क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, राइट? हाँ, बट इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं. सब देखो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो. 1/x प्लस वाई है ना? तो 1/x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, इस ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये हम लोगों को दिया हुआ है. दिस इज इक्वल टू -1. सो आई कैन राइट 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई जेड प्लस जेड एक्स. सर ये क्या लिख दिया आपने? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया है. ये -1 जो था, इस -1 को इधर लेके गया हूँ, और ये जो वाई जेड प्लस जेड एक्स है इसको इधर लेके गया हूँ, और कुछ नहीं किया हूँ. सिंपल, ठीक है. वैसे ही 1 प्लस जेड वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस जेड एक्स लिख सकता हूँ. और 1 प्लस जेड एक्स को क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ. चलो आगे. क्यों लिख रहे हैं ऐसा? चलो अब इसको थोड़ा और अगर मैं देखूं तो अगर मैं यहाँ पे z, चलो ये माइनस को तो ऐसे ही रहने दो. अगर मैं z को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? x प्लस वाई. यहाँ मैं अगर x को बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा? y प्लस जेड. और यहाँ अगर मैं y को बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा? x प्लस जेड. हाँ सर, अब समझ में आ रहा है आप इतना क्यों कर रहे हो. क्योंकि बेटा न्यूमरेटर में x प्लस वाई है, डिनोमिनेटर में भी x प्लस वाई आ गया ना. अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा? ये x प्लस वाई है डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई. कितना है? 1 प्लस एक्स वाई है, रुको, माइनस ऑफ z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z प्लस वाई. लिख दो, इधर जो था वही लिख दो. और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड हो या z प्लस वाई हो, एक ही बात है. और ये क्या है? x प्लस जेड डिवाइडेड बाय माइनस वाई इंटू एक्स प्लस जेड. अब करेंगे सबसे फन पार्ट, विच इज कैंसिलेशन. तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सब उड़ा दिए. बचा क्या? -1/z -1/x -1/y, ये बचा. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ले लो. तो माइनस तो कॉमन ले लेते हैं अपने, चलो. और एक्स वाई जेड एलसीएम में आएगा एक्स वाई जेड. और इधर क्या आएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड. और ये तो क्वेश्चन ही आ गया वापस. तो इसको -1 लिख देंगे, तो माइनस इंटू -1/xyz विच इज नथिंग बट 1/xyz. ऑप्शन सी. कितना भयानक लग रहा था ये क्वेश्चन देखने में, पर कितना इजी है इसका सोल्यूशन, राइट? यही करता है एग्जाम. एग्जाम में आपको बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, पर दिखने में एकदम विकराल शाकाल जैसे दिखेंगे क्वेश्चंस. चलो नेक्स्ट. थोड़ा पानी पी लेता हूँ. ओके नेक्स्ट. अच्छा, अभी ये देखो, द सैलरीज ऑफ A B C आर इन द रेशियो 2:3:5. ओके,
If increments of 15%, 10% and 20% are allowed respectively, what will be the new ratio? So simple. और इसको और सिंपल बनाने के लिए मैं एक तरीका, देखो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ठीक है सर 15% इंक्रीमेंट है तो लेट द रेशियो बी 2x 3x 5x और फिर उस पर 2x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 15/100 वो सब करते हैं. इतना नहीं करना यार, इतना नहीं करना, ठीक है. सिंपल फंडा है रेशियो का कि मैं उसको मैग्नीफाई कर सकता हूँ. अगर 2:3:5 है तो भैया इसको 200:300:500 भी लिख सकता हूँ, 2000:3000:5000 में लिख सकता हूँ, क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहेगा. अरे एक क्लास में अगर 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं तो उसका रेशियो 4:2 हुआ, 2:1 भी वही होगा ना. तो वही फंडा है इधर. लेकिन इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, अब देखो मान लेते हैं कि 200 300 500 है, तो अब 15% अगर मुझे बढ़ाना है तो 15% बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो 15/100 जो करते तो 100 कट जाएगा, मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा. तो अब 15% अगर मैं इसमें इंक्रीज करता हूँ तो मेरा नया रेशियो कितना बन जाएगा, 230 बन जाएगा. सर 230 कैसे आया, अरे बेटा देखो 200 इंटू 15/100 करोगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 230 आएगा. तो 30 किस में ऐड करोगे, 200 में ही तो ऐड करोगे. 30 तो उसका इंक्रीमेंट हुआ बट ओरिजिनल तो 200 था. आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द सैलरी, मैंने सैलरी बढ़ के कितनी रेशियो बनेगी, तो 230 हुआ. और ये कितना हो जाएगा, 300 है. अब देखो इसका लॉजिक देखो, इतना करना ही नहीं है भाई. 3 इंटू 10 इज हाउ मच, 30. तो 30 इंक्रीज होगा तो 330 हो गया ये. फिर 5 इंटू 2 इज हाउ मच, 10. तो 10 इंक्रीज हो जाएगा. तो 10 इंक्रीज होता है तो कितना हो जाएगा ये, मतलब 100 इंक्रीज होगा, माई बैड. 3 इंटू 10 30 के, 5 इंटू 20 इज 100 राइट. तो 100 इंक्रीज होगा तो ये 600 हो जाएगा. यही तो रेशियो आ गया. इसमें से 0 0 हटा दो. 23:33:60, और तो कुछ तोड़ नहीं सकते. 23 एक प्राइम नंबर है तो ऑप्शन ए मिल भी गया. मार्क करो, आगे बढ़ो, राइट. यही तो पेपर 3 की कहानी है, ऑप्शन मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है. अब आ जाता है लॉगरिदम. तो लॉगरिदम का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं बता देता हूँ. बहुत सिंपल रूल्स है, बहुत सिंपल तरीके हैं समझने के. देखो सबसे पहला होता है प्रोडक्ट रूल. मान लो लॉग ए है, बेस सपोज एक्स है, प्लस लॉग बी है, इसका भी बेस एक्स है. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए इंटू बी विथ बेस एक्स. और ये वाइस वर्सा भी पॉसिबल है. मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन में लॉग ए भी दिया, जैसे इस क्वेश्चन में आएगा वो, अगर वो दिया है तो आप उसको उल्टा भी लिख सकते हो, नो इश्यूज. मतलब ये वाइस वर्सा चलेगा ना, ये तो इक्वल इक्वेशन है ये. तो ये पहला रूल याद रखना. दूसरा क्या है, लॉग ऑफ ए एक्स माइनस लॉग बी, ये कितना हो जाता है, लॉग ए बाय बी. सिंपल, जो उधर मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था ये डिवीजन में हो रहा है, बस वो प्लस था इधर माइनस है, ठीक है. बेस सेम होना चाहिए, एक्स जो बेस है वो हमेशा सेम होगा, ये याद रखना. इसमें अलग बेस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो भी मैं बता देता हूँ, जो कि काम आने वाला है. लॉग, सपोज बेस एक्स है और ये ए है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग 1/1 लॉग एक्स ए. सर ये क्या हुआ, बेस और वैल्यू स्वैप हो गए तो वो रेसिप्रोकल बन जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आएगा ये, ठीक है. और इससे ही रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है. सपोज लॉग ए बेस बी है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग, मैं दुनिया का कोई भी बेस यहाँ लगा दिया, डिवाइडेड बाय लॉग दिस. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी को मैंने, जैसे पिछले वाले में भी ए और एक्स को मैंने तोड़ा था, पर वो तोड़ के एक्चुअली ये इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनता है, जो ये फॉर्मूला है इससे ही ये डिराइव होता है. तो पर ये दोनों हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे कर क्या रहे भाई, ए और बी दोनों को इज्जत देके लॉग का वैल्यू में डाल दिया और बेस उनका सेम कर दिया, एक तीसरा ही बेस डाल दिया एक्स. ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है. बस यही अपने को याद रखना है. इसके बाद तो क्वेश्चन हम लोग के इजीली सॉल्व हो जाएंगे. जैसे चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिखने में एक बार के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पर ये है इजी. लॉग ऑफ ए
लॉग ऑफ ए बी बेस ए इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है लॉग ऑफ ए बी बेस बी। देखो तो यहाँ पे बेस चेंज का फंडा चल रहा है, ये तो पक्का बात समझ में आ गया है, राइट। बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, क्यों? क्योंकि ए बी है अंदर में, तो इसको ऐसा लिखें अगर अपने लॉग ऑफ ए बी, अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास ये दिया हुआ है, तो अगर मैं इसमें बेस चेंज वाला रूल लगाऊं तो इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लॉग, इसको ए बी ही रहने दो, बेस बी डिवाइडेड बाय, चलो मैं बेस बी मान लिया, ठीक है ना। तो लॉग एक, तो अगर जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो क्या होगा, दोनों को इज्जत देना पड़ेगा, तो एक ए बी में गया और एक ए इधर बन जाएगा, तो ए बी और ए दोनों वैल्यू बन गए, और वो जो तीसरा बेस था वो मैं बी को मान लिया, ठीक है, वो मैं बी को मान लिया, ओके। अब तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स। अब मुझे निकालना है ये, तो न्यूमरेटर में मेरा जो मुझे निकालना है वो आ गया, तो लेकिन अब मेरा डिनोमिनेटर वाला जो है इसको मुझे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो x इंटू लॉग ए बेस बी ये आ रहा है। अब इसको कैसे x के टर्म, क्योंकि देखो ऑप्शंस में x के टर्म्स में, तो इसको x के टर्म्स में लाना पड़ेगा। अब देखो क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए यहाँ पे होल्ड करो। अब देखो लॉग ए बी इक्वल टू एक्स, ये तो दिया हुआ था, तो इसमें अगर प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो क्या आएगा, प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी बेस ए इक्वल टू एक्स। अब लॉग ये कितना हो जाएगा, x माइनस, अच्छा इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर्टी है लॉग में कि लॉग ऑफ कोई भी बेस अगर है, बेस और वैल्यू अगर सेम होता है तो वो हमेशा 1 होता है। इसीलिए जनरली आप देखोगे log 10 बेस 10 इज ऑलवेज 1, बट वो सिर्फ 10 के लिए नहीं, वो किसी भी बेस के लिए एप्लीकेबल है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 इधर जाएगा, तो -1 हो गया। अब देखो हमें चाहिए log a बेस b, हमें मिल रहा है log b बेस a, तो वो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगा दो, तो log a बेस b विल बी 1 बाय x माइनस 1, और इसको उठा के इधर चिपका दो, तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, your final answer will be x by x minus 1, option C, right? सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप you are pausing the video and solving the questions by yourself and then seeing the solution। भाई ऐसा मत करना कि मूवी की तरह देखे जा रहे हो, नहीं 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 नहीं, उससे रिवीजन क्लास का कोई आपका वैल्यू ही नहीं जनरेट होगा, राइट। तो प्रॉपर बैठकर पॉज करो वीडियो को, कॉपी पेन लो, सॉल्व करो, आंसर लाओ, नहीं आंसर आ रहा है तब जाके लास्ट में वीडियो देखो कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये एक और लॉग का क्वेश्चन आया, इस लॉग के क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। तो log 4x है, log x 16 है, 64, 256, ये सारे वैल्यूज है, राइट। अभी हमें x का वैल्यू निकालना है। अब देखो इसमें एक चीज नोटिस करो कि 4, 16, 64, 256 ये सारे 4 के बेस पर चल रहे हैं, राइट। लेकिन ये सब बेस में है, अगर मान लो x होता मेरा बेस और 4, 16, तो मेरी लाइफ बहुत इजी होती, मैं सबको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पर वैसी सिचुएशन नहीं है, तो इसके लिए व्हाट आई कैन डू इज, चलो इसको थोड़ा ऐसा करें, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये तो कर सकते हैं,
हाँ कर सकते हैं। अभी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/, इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, प्लस 1/, ये 16 क्या होगा, 4 स्क्वायर होगा। अच्छा, एक लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लॉग सपोज बेस a है, ये b टू द पावर n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n log a बेस b। तो उस n को मैं log के लेफ्ट साइड में ला सकता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, तो ये लिख सकता हूँ 2 log x4 प्लस 1/, अब 64 क्या होता है, 4 टू द पावर 3, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 log x4 प्लस, अब 256 क्या होता है, अगेन टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 log x4। ओके, तो अब 1/4 log x को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, विच इज नथिंग बट 1/log x4 इंटू, अब इसका वो ले लो ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा इसका 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, राइट। तो ये कितना आ रहा है, 1/log x4 इंटू, ऊपर कितना आ जाएगा, 12 प्लस 6 इज 18, 18 प्लस 4 इज 22, 22 प्लस 3 इज 25। अच्छा, अब आ जाते हैं RHS पे। तो ये इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 25/6 दिया हुआ है, तो बस ये 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये 12 कैंसिल होके 2 आ जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट, देयरफॉर 1/log x4 इज नथिंग बट 2, राइट। और अब देखो मैं वापस रिवर्स लॉजिक लगाने वाला हूं, तो रिवर्स लॉजिक अगर लगाते हैं तो इस 4 को, देखो मेरा यहाँ पे 2 है, तो मैं बुद्धि लगाऊंगा कि भाई 4 से तो काम नहीं चलेगा, तो इसको 2 log x2 लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि भाई ये 4 है, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना यार, तो ये 2 आया। अब फिर ये क्या बन जाएगा, अब ये 2 को उधर ले जाओ, तो ये 1/, देखो मैं एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, बट एग्जाम में आप इतना स्टेप मत लिखना वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अब देखो इसको वापस से मैं रेसिप्रोकल, क्योंकि मेरे को तो x निकालना है ना बॉस, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंड दिस विल बी नथिंग बट log 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मुझे बेस, देखो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बेस 2 चाहिए, राइट, मुझे बेस 2 चाहिए, तो 4 अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 4 को रिप्लेस करना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 टू द पावर, अगर यहाँ 16 होता, मतलब अगर यहाँ 2 टू द पावर 4 होता, तब देखो ये 4 इधर आ जाएगा और log 2 बेस 2 1 बन जाएगा, तो मेरा RHS सिक्योर्ड है। तो ये 2 टू द पावर 4 यहाँ लिख सकते हैं इसको, राइट, क्योंकि देखो अब इसको अगर मैं करूँगा तो ये 4 आएगा और log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो ये मैच कर जाएगा। मेरा इंटेंशन है कि मुझे यहाँ पे log 2 के बेस पे कुछ लाना है, तभी तो इक्वेट कर पाऊंगा RHS और LHS। अभी देखो काम हम लोग का सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि अब देखो लॉगरिथम अगर सेम है तो वैल्यू इक्वल होगा, तो आई कैन से दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 विच इज नथिंग बट 16, ऑप्शन सी, राइट। एनी क्वेश्चंस इन दिस, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो मैं आपको साथ साथ में थ्योरी भी बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चंस के संग संग आपको मैं थ्योरी भी बताते जा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं एकदम प्लेन सारा फॉर्मूलाज आपको एक बार में बोल दूँ, यू विल बी कंफ्यूज, एंड इससे क्या आपको समझ आ रहा है अप्लाई कैसे करना है और कहाँ अप्लाई करना है।
किस सिचुएशंस में कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना है सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। ये अगर आप समझ जाओगे तो फिर लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है ना, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का भी कुछ होगा, और ये हम लोग का लाइफ बहुत ईजी करने वाला है। देखो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7xy दिया हुआ है, तो ये 7xy प्लस 2xy विच इज 9xy मैं लिख सकता हूँ। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, रूट ओवर 9xy विच इज़ नथिंग बट रूट 9 कितना होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 3 रूट ओवर xy, ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। अब इस x प्लस वाई को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या आएगा, log 1/3 इंटू 3 रूट एक्स वाई, इसको हमें निकालना है। तो अब ये 3 और 3 तो उड़ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, log रूट एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई टू द पावर log एक्स वाई टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना रूट ओवर को। और अब मेरा उस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 log एक्स वाई आ जाएगा, एंड दिस विल बी 1/2 log x प्लस log y, राइट, विच इज ऑप्शन बी। सिंपल है, तो खाली x प्लस वाई होल स्क्वायर यूज करना था, यही इस प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी ये प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। ओके चलो, अभी देखो ये इंडिसेस का एक और क्वेश्चन आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगेन सी 2 टू द पावर n है, तो सारे 2 टू द पावर n को अलग कर दो, क्योंकि ये -1 +1 में जुड़े हुए हैं n के साथ, सबको डिफरेंट, सबको अलग कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n -1 को 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो सीधा मैं 2 टू द पावर n बाय 2 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर n इंटू 2, क्योंकि n प्लस 1 है तो ये पावर तो 1 ही रहेगा, जैसे उधर -1 था तो नीचे आ गया था, और ये -2 टू द पावर n हुआ। अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 2 को अब देखो इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, 2 टू द पावर n को कॉमन ले लो, तो 2 टू द पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 + 1/2 डिवाइडेड बाय इधर 2 टू द पावर n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 - 1, राइट। अब देखो 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कैंसिल, और 2 - 1 कितना होता है 1, तो 1 + 1/2 इज हाउ मच 3/2, द आंसर इज 3/2। सो 2 स्टेप सोल्यूशन, कुछ करना है नहीं है इसमें, राइट, वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक। तो देखो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत सिंपल है, बट आपको बस ऑब्जर्वेशन अच्छे से करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट, okay, this is one very important question on indices, yes। देखो 3 to the power x इक्वल टू 5 to the power y इक्वल टू 75 to the power z। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 3 to the power x इक्वल टू 5 to the power y इक्वल टू 75 to the power z। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इक्वल टू k ले लेता हूँ, ले ही सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, ज़रूर ले सकते हैं। तो 3 टू द पावर x अगर इक्वल टू k है तो 3 किसके बराबर होगा, k टू द पावर 1/x के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल टू साइन के उस तरफ में अगर कोई पावर जाता है तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है, राइट। स्क्वायर उस तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट होता है ना, वैसे ही ये हो गया। और 5 क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/y हो जाएगा, राइट। और 75 क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/z हो जाएगा।
अब देखो 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 15 इंटू 5 75 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 5 स्क्वायर लिख दूँ तो कोई इशू नहीं होगा, राइट। दिस इज डन। अभी देखो 75 क्या है, k टू द पावर 1 बाय z विच इज इक्वल टू 3 कितना है, k टू द पावर 1 बाय x इंटू 5 कितना है, k टू द पावर 1 बाय y और ये होल स्क्वायर है। तो इसको लिख देते हैं k टू द पावर 1 बाय z इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय x इंटू k टू द पावर 2 बाय y, राइट। अब ये k टू द पावर 1 बाय z है, ये बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो, ये आया। तो वापस से बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो मेरी क्या इक्वेशन बन के आएगी, 1 बाय z इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 2 बाय y। कोई ऑप्शन है? हाँ जी ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सारे ऑप्शन सी राइट आ रहे हैं, राइट, बिकॉज सी इज फॉर करेक्ट। बैड जोक। एनीवेज, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। ओके, अब ये एक वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ratios. So a bag contains rupees 185 in the form 1 rupee 50 paisa and 10 paisa coins in the ratio of this. Find the number of each type of coins. ठीक है, तो देखो 1 रुपी है, 50 पैसा है और 10 पैसा है इन द रेशियो दिस। तो अब अगर मैं इसको सारे को अगर रुपी में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा रेशियो कैसा बनेगा, 3 तो 3 ही रहेगा क्योंकि 3 कोरिस्पॉन्ड्स टू 1 रुपी। 4 इज फॉर 50 पैसा, तो अगर 4 कोरिस्पॉन्ड्स टू 50 पैसा विच इज हाफ ऑफ अ रुपी, तो रुपी के हिसाब से देखा जाए तो ये 4/2 2 हो जाएगा। और 10 पैसे कॉइन्स इज 5, तो 5 अगर 10 अच्छा 10 पैसा कितना होता है, 1/10, जैसे 50 पैसा वॉज 1/2 ऑफ अ रुपी, 10 पैसा इज व्हाट 1/10 ऑफ अ रुपी, तो ये 5/10 हो जाएगा। तो इसको 0.5 लिख दे, 5/10 0.5, ठीक है। तो अब देखो 0.5 माने हाफ होता है। अब इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि थोड़ा सा ये डेसिमल हट जाए। तो ये क्या बन जाएगा, 6:4:1, क्योंकि 0.5 इंटू 2 इज 1। तो अब ये मेरा जो रेशियो आ गया, ये मेरा रुपी का रेशियो हो गया। और 187 दिया हुआ ही है, हमें निकालना है ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो अब तो बचपन का प्यार, क्लास 4-5 का क्वेश्चन बन गया ये। तो ये क्या बन जाएगा, 6/11 इंटू 187 कितना होता है, 11 1 11 7, तो 17 इंटू 6 कितना होता है, 2 कैरी 4, 6 + 4 10, 102। अब देखो 102 पहला आ गया, देखो ऑप्शन में भी दिख रहा है तो उम्मीद बन रहा है कि हाँ राइट ही कर रहे हैं, राइट। फिर देखो दूसरा वाला क्या है, एक 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 187 कर दो, तो ये तो 17 ही आएगा ना, राइट। अब लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो 7 4 20, अरे यार ये बार बार हिलता क्यों है, हाँ 7 4 28 कैरी 2 68 आया है। सर 68 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, ये क्या हो रहा है। पर ये देखो बाबा, ये 50 पैसा कॉइन्स था और ये रुपी में आया है, तो 68 रुपी है, तो ये कितना 50 पैसा कॉइन्स के बराबर होगा, 68 इंटू 2 विच इज हाउ मच, 136। सो दिस ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है ना जो हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये 1 रुपया का कॉइन्स था, ये 50 पैसा का कॉइन्स है। अब ये कितना आ जाएगा, 1/11 इंटू 17, मतलब 187, सॉरी ये कट के 17 आएगा। अब अगेन यू विल से सर 17 तो ऑप्शन में नहीं है, तो भाई 10 पैसा कॉइन्स है ना,
तो 10 पैसा कॉइन्स कैसे होगा, तो 10 रुपया है, तो इंटू 10 करेंगे तब 10 पैसा कॉइन्स मिलेगा, तो ये 170 हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो भाई, 102, 136, तो 1 रुपया का 102, 136 इज फॉर दिस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। इस बार ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू टेक केयर ऑफ दिस वन, ये 68 जो है, अब यहाँ के अटक मत जाना कि रॉन्ग हुआ है, नहीं रॉन्ग नहीं हुआ है, आपने अज्यूम किया था कि रुपी का है, तो अब इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 50 जो कॉइन का जो डिनोमिनेशन है उसमें तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो एक ये लॉग का एक और क्वेश्चन है, तो लॉग तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, देखो यहां पे log 1 है, यहाँ पे log का बेस e नहीं दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे log का बेस e नहीं दिया हुआ है, तो what we have to do here is, okay, start, okay, so now see here we have done something like this। अभी देखो यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, बेस e बना दिया, क्योंकि मेरे को बेस e में लाना है इसीलिए, तो बेस e में ला दिए। अब ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x बेस e इंटू लॉग ई बेस ई तो 1 ही होता है, तो इसको 1 का 1 ही रहने देंगे, और ये हो जाएगा log ऑफ ई 1 प्लस एक्स। देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते क्योंकि log में बेस ई नहीं था, बट अब लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अब बेस ई हो चुका है, हमने बेस ई में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये हो जाएगा log ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय log e। देखो मैं जानबूझ के इसको 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे इसको ठीक करना है, तो अब ये क्या बन जाएगा, log बेस e पे x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय log e बेस e इक्वल टू 0। और अब देखो ये क्या बन जाएगा, डिवीजन रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई बेस ई ही है इक्वल टू 0। अब देखो ये जो 0 है, इस 0 को भी मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वी नो दैट किसी भी वैल्यू में 0 कब आता है, log में 0 कब आएगा, जब उसकी वैल्यू 1 होगी तब। सो आई कैन से नहीं, इसको इस तरह से नहीं लिखता हूं मैं, देखो बेटर वे में मैं बताता हूं। अब देखो ये जो चीज है ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो कब इक्वल टू 0 आएगा, जब log की वैल्यू 1 होगी तभी वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो बट वो स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा है दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई, ऑप्शन बी, दिस विल एक्चुअली बी माई आंसर, राइट, क्योंकि इस तरह से सिंपल वे में मैंने कर दिया इसको। हमें इसका इक्विवेलेंट पूछा है तो इसका इक्विवेलेंट यही होगा, राइट। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिए, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन एज होमवर्क एंड देन वी विल सॉल्व इट वंस यू आर डन विथ इट, ओके। सेम फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन,
सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन और पावर्स का एडिशन और कुछ नहीं है. प्लीज ट्राई दिस एज होमवर्क. अब देखो ये आ जाता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशंस. ओके, सो नाउ वी विल बी डीलिंग विथ इक्वेशंस. अब ये कैसे हो रहा है देखो. One student is asked to divide a half of a number by 6 and other half by 4 and then add the two quantities. फिर उसने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे. Instead of dividing the number, the student divides the number by 5, right? If the answer is 4 short of the correct answer, what is the original number? So let the original number is, let, देखो यहाँ पे बोला है ना हाफ ऑफ अ नंबर, तो लेट द ओरिजिनल नंबर इज 2x. इसमें क्या फ़ायदा होगा कि x/2 वाला दिक्कत नहीं आएगा. तो अब उसको कहा क्या गया था कि भाई आधे नंबर को 6 से डिवाइड करो और बाकी दूसरे आधे नंबर को 4 से डिवाइड करो, यही बोला गया था. एंड देन ऐड द टू क्वांटिटीज. तो उसका एक्चुअल आंसर ये आना चाहिए था, पर उसने किया क्या, स्टूडेंट ने जो नंबर है उसको पूरे को ही 5 से डिवाइड कर दिया. और अब बोल रहे हैं कि ये जो आंसर आया दिस इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर. मतलब अगर मैं इसमें 4 और जोड़ दूं तो ये इक्वल हो जाएगा, राइट. दिस वाज द एक्सपेक्टेड आंसर, दिस इज द एक्चुअल आंसर. तो एक्चुअल आंसर से 4 शॉर्ट है तो 4 ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा. तो हमें x निकालना है. कितना ईजी है, निकाल लो. तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 12. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 5. 2x प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको वैसे ही डायरेक्टली लिख देता हूँ ना इतना. 2x प्लस 3x 5x होगा, तो 5 इंटू 5 इज हाउ मच 25x is equals to 24x plus 240, right? So x is how much 240. बट अगर ऑप्शन में 240 होता, अगर आप मार्क कर देते तो नेगेटिव मार्क्स मिल जाता. क्यों? अरे बाबा x 240 आया है, आपका ओरिजिनल आपने अज्यूम तो 2x किया था, तो ओरिजिनल आंसर विल बी 480 ना बाबा. ऑप्शन सी. ठीक है. सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. चलो नेक्स्ट. ओके, नाउ सी दिस इज वन मोर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन इक्वेशंस. So a cab bill is partly fixed and partly varies on the distance covered, right? तो अब ये देखो, इसमें बिल जो जनरेट हो रहा है इसके दो कंपोनेंट्स है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल. तो फिक्स्ड को मान लेता हूँ चलो f प्लस मान लो वेरिएबल क्या होता है, जैसे पर किलोमीटर कितना रेट है, रेट, राइट. तो लेट द वेरिएबल बी r. r इज द रेट पर किलोमीटर एंड x इज द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स. ओके, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है. फॉर 456 किलोमीटर्स द बिल इज दिस मच, फॉर 484 किलोमीटर्स द बिल इज दिस मच. तो वैल्यू पुट करो. तो बिल कितना है, पहला वाला फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन 8252 इज इक्वल टू, बताता हूँ, f पता नहीं, r पता नहीं, x पता है विच इज 456. ये हमारा पहला इक्वेशन है. दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है भाई, 8728 इज इक्वल्स टू f प्लस r इंटू 484. नाउ वी विल साइमल्टेनियसली सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f एंड r. तो इसको करने के लिए f को हटाना है तो माइनस कर दो, तो f और f तो गया, और ये कितना आएगा 8 माइनस 2 6, 12 माइनस 2 7, 6 माइनस 2 4, 476 नेगेटिव में. दिस विल बी व्हाट माइनस r इंटू, ये माइनस करने पर कितना आएगा 14 माइनस 6 इज 8 एंड 7 माइनस 5 इज 2, 28, राइट. माइनस माइनस घटा दो तो r कितना आ जाएगा 476 डिवाइड बाई 28 विच इज हाउ मच
कर लो, 476 डिवाइड बाई 28, कैलकुलेटर का कमाल, 17 इज द आंसर। तो अब r का वैल्यू 17 आ गया, तो अब किसी भी इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके f भी निकाल लेते हैं, तो f कितना हो जाएगा, 8252, आई एम पुटिंग इट इन 1, 8252 माइनस 17 इंटू 456, तो ये कितना आ रहा है, $500, राइट। तो ये 500 आ रहा है और सब कुछ आपके पास है। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड फॉर 500 किलोमीटर्स। तो बिल कितना बन जाएगा, 500 प्लस रेट कितना है 17 इंटू डिस्टेंस कितना है 500, तो ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 17 5 ज़ा 85, 8500, सो टोटल इज 9000, ऑप्शन डी। ओके, खाली क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और इक्वेशन बना के आंसर लाना है, राइट। चलो, वेरी गुड। Okay, now we are going into again equations. Now this is a very simple question. The value of k for the system of equations this and this has no solution. मतलब k की कौन सी वैल्यू के लिए ये सिस्टम में कोई सोल्यूशन जनरेट नहीं होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है और k की वैल्यू को निकालनी है। तो प्लीज ट्राई टू डू दिस एट होम। ओके, अभी देखो ये करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एंड इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लॉजिक, सपोज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज सी बाई ए, करेक्ट। तो इन्हीं दोनों को यूज करना है इस क्वेश्चन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, सबसे पहले तो भाई लिख दो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7, क्योंकि -7/1 हो जाएगा, और अल्फा बीटा कितना आ रहा है 12। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी ऑब्जर्व हियर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो इसका सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, मतलब ये जो मेरे आंसर आएंगे इसमें से एक सम ऑफ द रूट्स में यही आएगा। तो अब ये क्या आ रहा है ये निकालो पहले, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो अपने पास है ही -7, तो ये तो 49 बन ही गया। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये -2 अल्फा बीटा होगा। दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो ये गया, तो ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो ये आ गया 49 माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू अल्फा बीटा, और 4 अल्फा बीटा कितना है, तो ये 12 4 ज़ा 48 हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना हो गया बॉस, 1 हो गया। तो ये 49 प्लस 1 इक्वल टू 50 आ गया। अब ऑप्शन देखो, कौन से इक्वेशन का माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 50, वही आंसर है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए, तो इसका माइनस बी बाई ए इज हाउ मच, -50/1, इट इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि -50x है, तो वो माइनस बी करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 50/1 आ जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स इज 50 बस।
दैट इज व्हाट यू हैड टू डू इन दिस क्वेश्चन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इसको ध्यान रखिए. ओके, चलो नेक्स्ट. Again, this question is based on the same logic which we have done in the previous one. Please try this as a homework. मिस्टर ए, अब देखो ये आ गया इनइक्वालिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है. तो मिस्टर ए प्लान्स टू इन्वेस्ट अप टू 30,000 इन टू स्टॉक्स एक्स एंड वाई. स्टॉक एक्स इज प्राइस्ड एट दिस एंड स्टॉक वाई इज एट दिस. इसको इनइक्वालिटी से कैसे शो कर सकते हैं? तो मिस्टर ए 30,000 तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. तो अब स्टॉक एक्स जो है ये 175 रुपीज़ पर शेयर है इसका, पर स्टॉक. तो अब इसका टोटल नंबर ऑफ, इसमें अगर वो इन्वेस्ट करता है तो इस स्टॉक एक्स में कितना इन्वेस्ट कर सकता है? टोटल 175x, क्योंकि x इज द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक और 175 इज द प्राइस ऑफ ईच स्टॉक, राइट. और स्टॉक y में कितना कर सकता है? 95y. तो ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है. और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये अप टू 30,000 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. मतलब दिस वैल्यू कैन मैक्सिमम बी इक्वल टू 30,000, इससे ज़्यादा नहीं. सो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 30,000, राइट. अगर इसमें बोलता कि ही प्लान्स टू इन्वेस्ट लेस देन 30,000 तो ये सिर्फ लेस देन होता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होता. लेकिन यहाँ पे बोला लेस देन इक्वल टू, अप टू मतलब 30,000 भी कर सकता है, उससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं करेगा. तो ये हो जाएगा 175x प्लस दिस लेस देन इक्वल टू 30,000. तो कोई ऑप्शन है? नहीं है. आंसर इज नन ऑफ दिस. ओके, तो दिस इज द वे हाउ वी इंटरप्रेट inequalities from a given question, right? Now this is a very interesting question, very interesting question. Please pay attention on how we will solve this. देखो, the common region in the graph of the inequalities this. तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है इसका. अब बहुत ध्यान से आप सुनो, ठीक है? देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ. देखो आई एम यूजिंग प्लेन पेन, नॉट नो स्केलर, नो लाइन, नथिंग. तो थोड़ा सा आप समझ जाना कि किस तरह से ग्राफ बन रहा है. दिस इज द ओरिजिन, दिस इज सपोज 1 2 3 4 5 6 5 तक ही बनाता हूँ. यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा ना. बस इतना ही रखते हैं, अगर यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे. देखो पहला इनइक्वालिटी क्या है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4. तो सबसे पहले कंसिडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ओके, वन मोमेंट. कंसिडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 होता है तो मेरा लाइन कैसा दिखेगा? देखो इसके लिए क्या करना है, सिंपल x और y का एक डब्बा बना दो. अब x अगर 0 होता है तो y 4 होगा, x अगर 1 होता है तो y 3 होगा. तो x अगर 0 है तो y 4, मतलब ये पॉइंट है. और x अगर, अब y अगर 0 है तो x 4 होगा, तो ये एक पॉइंट मिलेगा. फिर x अगर 1 है तो y 3 होगा, तो ये एक पॉइंट मिलेगा. तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा लाइन बन रहा है और ये लेस देन इक्वल टू है. तो लेस देन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे और बॉटम देखते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम मतलब ये जो रेंज है, ये रेंज अभी आया है, पर मैं इसको भी शेड नहीं करूँगा क्योंकि और भी चीज़ें आनी बाकी है अभी. फिर अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू 2 की लाइन कौन सी होती है? ये होगी x इक्वल्स टू 2, राइट. दिस विल बी x इक्वल्स टू 2. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब इसकी राइट हैंड साइड. तो मतलब अभी मैंने जोन आउट कर दिया, जो मेरा ये जोन है, ये जोन अभी अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है. अब तीसरा क्या है? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4. तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए अगर मैं बॉक्सेस बनाऊं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x अगर y 0 होता है तो x 4 होगा, ये पॉइंट. अगर x 0 होता है
तो y -4 होगा, तो ये पॉइंट। तो फिर अगर आप देखोगे x अगर 1 होता है तो y कितना हो जाएगा, -3। तो द पॉइंट इज x 1 है तो y -3, तो ये पॉइंट आया। तो ये लाइन कुछ इसी का ही मिरर इमेज बनेगा। देखो एक तरह से देखा जाए तो ऐसा इमेज बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अब इस सिनेरियो में मुझे ये चेक करना है कि मेरा कॉमन रेंज, तो देखो इसका लेफ्ट साइड में मैं देखूंगा तो मेरा ये जो रेंज है ये आ जाएगा ना कॉमन। ऐसे तो पूरा ही है, लेकिन मुझे तो कॉमन रीजन देखना है इन ग्राफ्स के, तो ये मेरा कॉमन रीजन है। तो ये ट्रायंगल तो बन गया। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो समझते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सी व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज हाउ मच, 2, एंड दिस लेंथ इज हाउ मच, 2। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये 2√2 ही होगा। एंड सिमिलरली ये 2 है और ये 2 है, तो ये भी 2√2 होगा, राइट। अरे पाइथागोरस थ्योरम बॉस बचपन में पढ़े, 2 और 2 है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज हाउ मच, 4 + 4 8। तो h कितना हो जाएगा, √8 विच इज 2√2, राइट। तो वही है। तो अब मेरा ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। इसका ये 2√2 है, ये 2√2 है, पर ये 2 + 2 4 है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये 4 है। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये अगर आप समझ गए तो इनइक्वालिटीज ओवर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, ये एक और इजी सा क्वेश्चन है, इसको फटाक से खत्म करते हैं। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। तो कॉमन रीजन ऑफ द डायग्राम, तो इसमें अब क्या है बॉस, देखो बहुत इजी है। L1 में 5x + 3y = 30 है, तो L1 का राइट साइड हम लोग देख रहे हैं, राइट। L1 के राइट साइड का पार्ट शेडेड है, तो ऑप्शन ए तो पहले ही खत्म, ठीक है। और इसमें ये भी नोट करो कि ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, हम लोग इक्वल टू को भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट 0, जो 6, जो ये 6,0 जो पॉइंट है, ये जो 6,0 जो पॉइंट है, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो मतलब ये = 30 होगा। अगर मैं इसमें 6,0 पुट करूं तो ये 30 आएगा, तो ये इक्वल है, तो ये भी गया। अब इन दोनों में से चूज करना है, तो ये तो अब सेकेंड वाला लाइन देखो, L2, ये L2 के लेफ्ट में शेडेड पोर्शन है, इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, पर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये ऑप्शन भी गया। ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। गॉट इट? ओके, चलो नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द फाइनल टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर विच इज एपीजीपी। इसकी भी मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं। एपी, एपी में nth टर्म क्या होता है, a + n-1 into d, where a is the first term, d is the common difference, right, common difference, और n is the number of terms। चलो मैं लिख ही देता हूँ फटाफट। a is the first term, d is the common difference, and n is the number of terms। and sum of n terms क्या होता है, n/2 into 2a plus n-1 into d। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स एपी का, बस इतना ही याद रखना है, एपी में और कुछ नहीं है। और एक टर्म्स कैसे बनते हैं, a plus d, a plus 2d, इस तरह से टर्म्स बनते हैं एक एपी में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर 3 टर्म है, सपोज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, सो आई कैन राइट a plus c is equal to 2b. This is one property of AP, right? And same case GP में क्या होता है, nth टर्म क्या होगा GP का,
a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, जहाँ पे a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो, राइट, टू टू स्क्वायर टू क्यूब, टू मल्टीप्लाई होता जाता है, इसमें AP में ऐड होता था, इसमें मल्टीप्लाई होता है रेशियो. सो दिस इज द थिंग. एंड व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP? a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 if r is greater than 1, और अगर लेस देन 1 है r तो ये बस 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर हो जाएगा. ठीक है. और GP का टर्म्स कैसे दिखता है? ए आर स्क्वायर इस तरह से जाता है. सो आई कैन से दैट a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर. बस पूरा APGP का कॉन्सेप्ट इतना ही है और कुछ नहीं है. ओके. अब देखो क्वेश्चन में जब इसको अप्लाई करेंगे तब आपको और इजीली समझ में आएगा. इफ PQR आर इन AP एंड XYZ आर इन GP देन दिस इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है. अब देखो PQR अगर AP में है तो आई कैन से दैट P प्लस R इज इक्वल टू 2Q. सेम लॉजिक जो यूज किया था हमने. एंड XYZ GP में है तो मैं लिख सकता हूँ XZ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ठीक है. अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं अगर, तो ये क्या है? x टू द पावर q माइनस आर. अब देखो इसको थोड़ा मैं ना रीफॉर्म करूंगा. p प्लस आर इज इक्वल्स टू, इसको q प्लस क्यू लिख देते हैं. ठीक है. तो ये क्या आएगा? अब देखो मेरे को q माइनस आर चाहिए तो r को इधर ले जाओ तो q माइनस आर विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू, राइट, क्योंकि r इधर जाएगा और q इधर जाएगा तो q माइनस आर विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू. तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ x टू द पावर p माइनस क्यू इंटू वाई टू द पावर r माइनस p इंटू z टू द पावर p माइनस क्यू. तो अब x देखो ये पावर सेम है तो मैं xz लिख सकता हूँ इसको टू द पावर p माइनस क्यू, राइट, क्योंकि पावर सेम है तो मैं उसको कंबाइन कर सकता हूँ ना बेस को. 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 है तो इसको मैं 2 इंटू 3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना. ये देखो ना 9 4 द 36 आता है और ये भी 3 इंटू 2 6 6 स्क्वायर 36 ही आएगा. ठीक है. तो ऐसे हमेशा चेक कर लेना अगर कभी कंफ्यूजन हो तो. अब ये इंटू y क्या है? y इज xz ओनली, राइट. तो xz इज y स्क्वायर, इसको चलो y टू द पावर r माइनस पी ही लिख देते हैं. तो xz क्या है? y स्क्वायर. तो ये हो जाएगा y इंटू 2 इंटू पी माइनस क्यू इंटू वाई टू द पावर r माइनस पी. अब देखो बेसिस सेम है तो इसको ऊपर में ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 2p माइनस 2q प्लस r माइनस p, राइट. तो ये कितना आ जाएगा? y टू द पावर 2p माइनस p इज हाउ मच? p प्लस r माइनस 2q और p प्लस r तो 2q के बराबर ही है तो ये क्या आ गया? y टू द पावर 0 which is nothing but 1. ओके. सो सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है फॉर्मूला और आंसर लाना है. ठीक है. अभी देखो ये एक और क्वेश्चन है विच इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट विच वी हैव लर्नड कि जीपी में अगर 3 टर्म है ए, पहला 3 टर्म अगर जीपी का ए बी और सी है तो a इंटू सी इज बी स्क्वायर. यही सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था वही इसमें यूज हो रहा है. तो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस एज होमवर्क. ओके. चलो अब आ जाते हैं ये एपी का क्वेश्चन में. एपी में सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला याद है ना, वही यूज होगा इसमें. सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी इज 18. तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब क्या हुआ? ए प्लस डी और a प्लस 2d. दिस इज गिवन एज 18. तो इसको मैं अगर ठीक से लिखूं तो क्या आएगा? 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 18. तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 6. सॉरी a प्लस d
इज इक्वल्स टू 6, राइट। दूसरा क्या दिया हुआ है, लास्ट 3 इज 28। तो लास्ट, अब देखो एपी में 13 टर्म्स है बॉस, तो लास्ट का टर्म्स क्या होगा, a प्लस 12d, क्योंकि n माइनस वन इंटू डी था, तो 13 माइनस वन 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा लास्ट का 3 टर्म, तो ये कितना आ रहा है, 3a प्लस 33d, दिस इज इक्वल टू 28। सो a प्लस 11d कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 28 डिवाइड बाई 3। तो ये दो इक्वेशन मिल गए। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। देखो डरना नहीं है, 28/3 आया तो डरो मत, देखते हैं क्या आता है, अपने तो राइट ही कर रहे हैं अभी तक। तो माइनस करो, ये गया, ये कितना आ रहा है, -10d इज इक्वल टू 28/3, माइनस में है ये, प्लस 6, तो ये कितना आएगा, -10d इज इक्वल टू -28 -8 ये देखो -28 प्लस 18 आ जाएगा, तो ये -10 ही हो जाएगा। अब देखो हम लोग का काम थोड़ा इजी हो रहा है, ये आ जाएगा -10/3, तो ये कट जाएगा, तो 10 भी कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1/3, तो कॉमन डिफरेंस इज 1/3। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकाल लो, तो a कितना आ जाएगा, इसमें डाल दो ना a प्लस डी इक्वल टू 6 में, तो a विल बी हाउ मच, 6 माइनस 1/3 विच इज 17/3। तो a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, वी जस्ट हैव टू फाइंड द सम ऑफ द मिडल 3 टर्म्स। तो मिडल 3 टर्म्स क्या होगा, तो 13 numbers are there, so middle 3 terms will be what, the 6th term, 7th term and the 8th term, right? क्योंकि देखो 7th term के इस साइड में भी 6 नंबर्स है, इस साइड में भी 6 नंबर्स है, तभी तो टोटल 13 होगा। तो 7th term, 6th term एंड 8th term, तो a प्लस 6th term क्या होगा, a प्लस 5d, 7th term will be a प्लस 6d एंड 3rd term will be 8th term will be a प्लस 7d। तो ये टोटल कितना आ रहा है, 3a प्लस 18d। तो अब a का वैल्यू मालूम है 17/3, तो ये हो जाएगा 17, और d का वैल्यू 1/3 पता है, तो ये कितना हो जाएगा 18/3 विच इज 6। सो दिस इज 23। देखो कितना सिंपल आंसर आया है, कितना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज के साथ। तो दिस इज हाउ यू डू इट, राइट। आराम से अपने पे कॉन्फिडेंस रख के एक एक स्टेप सॉल्व करोगे, यू विल गेट टू द आंसर, राइट। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, try this at home, it is based on the same concept, okay? So this was all for today's session. I hope you understood and had a comprehensive practice of all the topics related to algebra, right? So stay tuned, practice well, and we will meet in the next class where we are going to discuss about permutation combinations and time value of money, which are two very important topics for your paper 3. Till then, this is Aditya Goenka saying goodbye. Keep practicing. Thank you so much.